Hello and welcome everyone to St. John David online classes. Today in this class we'll discuss about esophagus, pharynx and stomach from the chapter life process, and the topic is nutrition in human beings. Earlier we discussed about salivary glands. So now we will discuss on these three topics. So to get the continued video, please do subscribe the channel as well as press the bell icon so that you get the updates on regular basis. Those who have not seen the first part of this video, that is nutrition in human beings, they can click the eye icon and they can see the video. So okay, we are now going to start this video. The first thing that we are going to discuss over here is esophagus. Esophagus is a part of digestive system which is also known as food pipe. So this is the diagram. You see the first green dot is the starting of the esophagus and the last green dot is the end of the esophagus. It's a tube, it's a continued tube, it's a muscular tube. And what does esophagus does? Esophagus is a tube which connects mouth to your stomach. Means the food which you take through your mouth, in that mouth food becomes in bolus form. Means it forms a small balls, and from there through this pipe food travels to the stomach. So esophagus is a muscular tube which helps to connect the mouth to the stomach. So when we swallow the food, जब हम फूड को निगलते हैं चबाने के बाद, when we swallow the food, so the walls of the esophagus they squeeze. मतलब squeeze करने का मतलब यहाँ पे क्या है, उनके अंदर contraction और relaxation होता है, जैसे peristaltic movement. For example earthworm, you have seen earthworm moving, किस तरीके से वो मूव करता है earthworm. उसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है कि नहीं, एक बार वो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बाद रिलैक्स होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रिलैक्स होता है. सो इन द सेम वे इसोफेगस मसल्स डज, एंड विद दैट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट द फूड पासेज ऑन. वो फूड जो है वो पूरे ट्यूब के थ्रू पास ऑन करता है एंड फाइनली इट गोज इनटू द स्टमक. सो दिस इज द फूड पाइप. इसका काम क्या है, फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाने का इसका काम होता है. और ये फूड पहुंचाता कैसे है, जब आप फूड को निगल लेते हैं तो फूड को निगलने के बाद इस ट्यूब में फूड आता है और फिर ट्यूब के अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने लगता है, जिसकी वजह से फूड धीरे धीरे आगे बढ़ता है और फाइनली वो स्टमक में एंटर कर जाता है. सो दिस वॉज अबाउट इसोफेगस. And another name of esophagus is food pipe. Next we are going to talk about pharynx. So here is the diagram in which you can see pharynx, है ना. तो if you are seeing the diagram, then you see that there is a cavity, means there is a space where pharynx is located, है ना. So pharynx is a body cavity, means here is a space. And what does pharynx do? Pharynx is like a square. Square मतलब यहाँ पे चौराहे टाइप का है, which connects larynx, esophagus, nasal cavity and oral cavity together. तो मतलब कहने का है pharynx जो है, जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, pharynx एक बॉडी कैविटी है और pharynx करता क्या है, nasal cavity को, oral cavity को कनेक्ट करता है किससे, larynx से और इसोफेगस से. तो फेरिंग्स का काम डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि फेरिंग्स की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं, मींस जो फेरिंग्स की वॉल होती हैं, वो जो फूड हम जब स्वेलो करते हैं तो उस फूड को वो एक रास्ता देता है, सही रास्ता देता है, ताकि वो फूड जो है इसोफेगस में इंटर कर पाए, ताकि वो फूड पाइप में इंटर कर पाए, क्योंकि हम जानते हैं इसोफेगस को फूड पाइप नाम से भी जाना जाता है. तो डाइजेस्टिव सिस्टम में फेरिंग्स की जो मस्कुलर वॉल्स होती हैं वो फूड को डायरेक्शन देती हैं, सो दैट फूड गेट्स इन द इसोफेगस, ताकि फूड जो है वो आराम से इसोफेगस वाली ट्यूब में ही जाए. आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसोफेगस के साथ साथ ट्रैकिया की ट्यूब भी उसके बगल में
मौजूद होती है। इसोफेगस के साथ ट्रैकिया की ट्यूब भी बगल में मौजूद होती है। सो इफ़ बाय मिस्टेक फूड गेट्स इंटर इनटू द ट्रैकियल ट्यूब, तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं और अल्टीमेटली डेथ भी हो सकती है। सो इस वजह से फूड को इसोफेगस में ही जाए वो फूड, इस वजह से ये चीज़ बहुत ध्यान में रखी जाती है और फेरिंग्स जो है उसको डायरेक्शन प्रोवाइड करने का काम करता है। यहाँ पे मैं आपको एक और स्ट्रक्चर के बारे में मेंशन करना चाहूँगा, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस का काम क्या होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और कई बार इसके बारे में पूछा भी जाता है कि व्हाट इज़ एपिग्लॉटिस, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लॉटिस। तो एपिग्लॉटिस एक ऐसा स्ट्रक्चर है विच प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ट्रैकियल ट्यूब। एपिग्लॉटिस करता क्या है कि वो फूड जो आप इनटेक कर रहे हैं वो फूड गलती से ट्रैकिया में न एंटर कर जाए, वो सिर्फ इसोफेगस में ही जाए, इसका काम एपिग्लॉटिस करता है। उस फूड को सही डायरेक्शन में ले जाने का काम एपिग्लॉटिस करता है, एज वेल एज फेरिंग्स भी उसको सही रास्ता दिखाने का काम करता है। किसको? फूड को। एपिग्लॉटिस जो स्ट्रक्चर होता है वो दो काम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यू हैव सीन दैट व्हेन यू स्वेलो समथिंग, जब आप कोई चीज़ निगलते हैं, एट दैट टाइम यू स्टॉप ब्रीदिंग, आप उस वक्त सांस नहीं लेते हैं। व्हेन यू स्वेलो समथिंग यू डोंट ब्रीथ एट दैट टाइम। ऐसा क्यों होता है? जब आप निगलते हैं तो एपिग्लॉटिस क्या करता है, जो आपकी ट्रैकियल ट्यूब की ओपनिंग होती है उसको क्लोज करता है, मतलब एयर पैसेज को वो क्लोज करता है, सो दैट योर फूड गेट्स इंटर इनटू द इसोफेगस। और जब आप सांस लेते हैं तो आप सांस लेते वक्त स्वेलो नहीं कर पाएंगे, आपको अपनी सांस रोकनी ही पड़ेगी। तो जब आप स्वेलो नहीं करते हैं तब एपिग्लॉटिस क्या करता है कि आपकी इसोफेगस की ट्यूब को क्लोज किए हुए रहता है, ताकि जो एयर है वो इसोफेगस में ना इंटर करे बल्कि वो ट्रैकियल ट्यूब में इंटर करे। तो ये काम होता है एपिग्लॉटिस स्ट्रक्चर का। इट्स अ मेन स्ट्रक्चर। ये चीज़ों को डायरेक्शन देता है एयर को ट्रैकियल ट्यूब्स में ताकि वो लंग्स में चले जाएँ, और फूड को इसोफेगस में ताकि वो स्टमक में चले जाएँ। आवर नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज स्टमक। तो मैं स्टमक की आपको थोड़ा सा आउटलाइन यहाँ पे देता हूँ कि स्टमक का जो शेप है इट्स लाइक जे शेप। जो स्टमक का शेप होता है वो जे शेप का होता है। एंड इफ़ यू सी द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टमक, देयर आर टू स्पिंक्चर्स। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड इसोफेजियल स्पिंक्चर। स्पिंक्चर का मतलब यहाँ पे क्या है? एक वॉल्व होते हैं, वॉल्व टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। तो जैसा कि पहला स्पिंक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इसोफेजियल स्पिंक्चर के नाम से जाना जाता है, एज वेल एज इसको कार्डियल स्पिंक्चर नाम से भी जानते हैं। इस वॉल्व का काम क्या होता है कि जो फूड इसोफेगस के थ्रू स्टमक में आ चुका है वो फूड वापस से इसोफेगस में न जाए, उसको प्रिवेंट करने के लिए ये स्पिंक्चर्स जो है वो मौजूद होते हैं। अनदर स्पिंक्चर दैट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द स्टमक इज नोन एज पाइलोरिक स्पिंक्चर। ये जो पाइलोरिक स्पिंक्चर होता है ये कहाँ मौजूद होता है? ये स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पे, मतलब स्टमक के एंड पॉइंट पे और स्मॉल इंटेस्टाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पे ये पाइलोरिक स्पिंक्चर दे आर प्रेजेंट। मोरओवर इन द स्टमक देयर आर वेरियस ग्लैंड्स अराउंड द वॉल ऑफ द स्टमक। स्टमक के वॉल के चारों तरफ कई सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। उनमें से कई ग्लैंड्स क्या करते हैं, अपने अपने सिक्रीशंस देते हैं। उसी तरीके का एक ग्लैंड होता है पैरोटिड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड होता है? पैरोटिड ग्लैंड। दैट ग्लैंड सिक्रीट्स HCl इन द स्टमक, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन द स्टमक। तो ये सिक्रीशन जो होता है HCl का, ये डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। फूड को डाइजेस्ट करने में इसका बहुत ज़्यादा रोल होता है HCl का। और ये HCl किससे सिक्रीट होता है? पैरोटिड ग्लैंड से। स्पिंक्चर्स के बारे में मैं एक चीज़ आपको और बताना चाहता हूँ कि दे आर यूनिडायरेक्शनल। मीन्स ये जो स्पिंक्चर्स होते हैं वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में खुलते हैं। जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि अगर इसोफेजियल स्पिंक्चर खुलेगा तो वो सिर्फ डाउनवर्ड खुलेगा, मतलब इसोफेगस से जो फूड आ रहा है उसको इंटर करने के लिए वो स्पिंक्चर खुलेगा और वो फूड वापस स्टमक में चला आएगा। वो अपवर्ड की तरफ नहीं खुलेगा। अगर वो अपवर्ड की तरफ खुलता तो हो सकता है स्टमक से फूड वापस इसोफेगस ट्यूब में
चला जाता है, लेकिन उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो स्पिंक्चर्स होते हैं वो यूनि डायरेक्शनल खुलते हैं। इसी तरीके से पाइलोरिक स्पिंक्चर भी वो एक डायरेक्शन में खुलता है। सो लेट्स मूव अहेड। So the stomach is what? Stomach is a large organ which expands when foods enter. It's a large organ, और जैसे जैसे फूड इसमें इंटर करता जाता है उसकी प्रॉपर्टी होती है कि वो फैलता चला जाता है। एंड द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमक दे हेल्प इन मिक्सिंग द फूड विद द डाइजेस्टिव जूसेस। और जो स्टमक की वॉल होती है वो वॉल क्या करती है, जो स्टमक में फूड है एज वेल एज जो डाइजेस्टिव जूसेस हैं। अब ये डाइजेस्टिव जूसेस क्या हैं? डाइजेस्टिव जूसेस मतलब कुछ ऐसे सिक्रीशंस जो कि बहुत सारे ऑर्गन्स जो कि एसेसरी ऑर्गन्स बोले जाते हैं वो अपने अपने सिक्रीशंस को स्टमक में डालते हैं, जैसे कि बाइल हो गया, पैंक्रियाज हो गया। ये सारे जो ऑर्गन्स हैं ये ऑर्गन्स अपने अपने सिक्रीशंस को स्टमक में डालते हैं सो दैट जो फूड स्टमक में आया हुआ है वो फूड ईजिली जो है डाइजेस्ट हो सके और वो सिक्रीशंस उनको डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। तो वो जो फ्लूइड आया है स्टमक में एज वेल एज जो फूड स्टमक में आया है वो अच्छी तरीके से मिक्स हो, इसके लिए स्टमक की वॉल जो है काम करती है और उसको मिक्स करने का काम करती है। एज वेल एज जो फूड में जो फूड का डाइजेशन होना है उसमें जो स्टमक के वॉल पे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स मौजूद होते हैं वो ग्लैंड्स भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं फूड के डाइजेशन के लिए। तो उनमें से जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैरोटिड ग्लैंड होता है जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज़ करता है, तो वो सिक्रीशन एक रिलीज़ होता है स्टमक में। एज वेल एज बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं स्टमक के वॉल के अराउंड, वो HCl के साथ साथ पेप्सिन को रिलीज़ करते हैं। पेप्सिन क्या है? पेप्सिन एक डाइजेस्टिव एंजाइम है, मतलब एक ऐसा एंजाइम है जो कि डाइजेस्ट करने का काम करता है। वो भी किस चीज़ को डाइजेस्ट करने का काम करता है? फूड में जो प्रोटीन्स मौजूद हैं उन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है पेप्सिन, तो वो भी सिक्रीट होते हैं। एज वेल एज म्यूकस का भी सिक्रीशन होता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, इट्स इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट अबाउट म्यूकस इज दैट म्यूकस is such a substance which prevents the wall of the stomach from being degraded by the action of HCl। म्यूकस क्या होती है? म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टमक के वॉल को प्रिवेंट करता है सो दैट जो एसिड रिलीज हो रही है स्टमक में वो एसिड स्टमक की वॉल को डिस्ट्रॉय न कर पाए। इसके लिए म्यूकस की एक लाइनिंग जो है वो स्टमक की वॉल्स के अराउंड बन जाती है और वो HCl स्टमक की मेन वॉल्स को नुकसान नहीं पहुंचाता है। समटाइम्स व्हेन देयर इज़ अ डिफिशियंसी ऑफ म्यूकस या बहुत ज़्यादा जो स्पाइसी खाना खाता है जिसके अंदर एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगती है, सो एट दैट टाइम पेशेंट सफ़र्स फ्रॉम अ डिजीज़ कॉल्ड अल्सर। तब वो अल्सर बीमारी से सफ़र करता है क्योंकि उसमें होता क्या है कि म्यूकस की लेयर डिस्ट्रॉय हो जाती है और फाइनली वो एसिड स्टमक की वॉल को टच करने लगता है जिससे कि बहुत ज़्यादा इंटेंस पेन होने लगती है, बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और स्टमक की वॉल्स को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचना शुरू हो जाता है। तो म्यूकस एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि प्रिवेंट करता है एसिड के एक्शंस को स्टमक की वॉल के अगेंस्ट। उसके साथ साथ मैंने बताया कि एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होता है जिसका नाम है पेप्सिन। अब ये पेप्सिन जो है जब वो सिक्रीट होता है व्हेन इट इज सिक्रीटेड इट्स इन एन इनएक्टिव फॉर्म, वो इनएक्टिव फॉर्म में होता है। बट व्हेन इट कम्स इन एसिडिक मीडियम, मतलब जब वो HCl के माहौल में आता है, HCl के इन्वायरमेंट में आता है, देन इट बिकम्स एक्टिवेटेड और फिर वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। Here, when the food is digested in the stomach, then it exits from the stomach and goes into the small intestine। जब फूड ठीक तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है स्टमक के अंदर तब वो फूड जो है मूव करता है स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। अब फूड अचानक से पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ मूव न करे, इस वजह से एक स्पिंक्चर दिया हुआ है पाइलोरिक स्पिंक्चर, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया था। वो स्पिंक्चर क्या करता है? वो गार्ड करता है, वो देखता है कि थोड़ा थोड़ा फूड जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाए ताकि
उसका एब्जॉर्प्शन जो है वो सही तरीके से हो सके, सारा फूड एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर न जाने पाए, इस वजह से वहाँ पे पाइलोरिक स्फिंक्टर मौजूद होते हैं। और इसके बाद जब फूड में डाइजेशन हो जाता है तो फाइनली फूड जो है स्टमक से पास ऑन करता है एंड इट इंटर्स द स्मॉल इंटेस्टाइन। So this was all about today's video. In the next class we will discuss about parts of stomach and various other things. Till then, do your study at your home and please like, share and subscribe the video. Thank you.